हेलो क्लास, स्वागत है आपका वीडियो लेक्चर सीरीज में। हम डीबीएमएस वीडियो लेक्चर सीरीज की बात कर रहे हैं और हम पढ़ रहे थे नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन में हमने BCNF तक बात कर लिया। द डिकम्पोजिशन ऑफ अ टेबल इनटू मोर देन वन टेबल इज कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन एंड वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट first normal form, second normal form, third normal form and Boissy-Codd normal form, that is BCNF। हम लोग लॉसलेस ज्वाइंट डिकम्पोजिशन की बात कर रहे थे। उसी सिलसिले को आज आगे बढ़ाते हैं और उसी लॉसलेस ज्वाइंट डिकम्पोजिशन को आज कंप्लीट करते हैं। लास्ट वीडियो में वो कंप्लीट नहीं हुआ था, तो आज उसको कंप्लीट करते हैं और उसके आगे हम बात करते हैं लॉसलेस ज्वाइंट डिकम्पोजिशन। लॉसलेस ज्वाइंट डिकम्पोजिशन। तो लास्ट वीडियो में बात किया गया था लॉसलेस ज्वाइंट डिकम्पोजिशन को। तो क्या होता है, इसके नाम से क्लियर है कि जब हम टेबल को डिकम्पोज करते हैं और उसके बाद टेबल को जब हम ज्वाइन करते हैं तो हमें लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन मिलता है, या कुछ अनइंटरप्टेड या फिर कुछ अनवांटेड टपल्स हमें रिटर्न हो जाते हैं जिसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो ऐसा डिकम्पोजिशन, किसी टेबल का ऐसा डिकम्पोजिशन जिस पे नेचुरल ज्वाइंट परफॉर्म करने के बाद एग्जैक्टली वही ओरिजिनल टेबल मिले या एग्जैक्टली वही रिलेशन मिले, वो कहलाता है लॉसलेस ज्वाइंट डिकम्पोजिशन। दैट इज कॉल्ड लॉसलेस ज्वाइंट डिकम्पोजिशन। If we obtain the natural join of the decompositions of the table in which after performing the natural join we obtain the exactly same relation or exactly same table, this is called lossless joint decomposition। ये क्या कहलाता है? lossless joint decomposition। यहां तक बात किया जा चुका था। अब देखिए उसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। If natural joins if natural joins returns exactly the same relation, then this is called lossless joint decomposition। The natural join of decompositions returns exactly the same relation is called lossless joint decomposition। देखिए उसके आगे थोड़ा सा, we consider the simple case of a relation R we consider the simple case of a relation R being decomposed into R1 and R2
being decomposed into R1 and R2. If the decomposition is lossless, then one of the following two conditions must hold. If the decomposition is lossless, then one of the following two conditions must hold. One of the following two conditions must hold. One of the following two conditions must hold. क्या होता है ये? R1 intersection R2 tends to R1 minus R2. ठीक, फिर R1 intersection R2 tends to R2 minus R1. इन दो में से एक कंडीशंस कोई जरूर होल्ड होगा. ठीक, क्या बोला गया है? लॉसलेस ज्वाइंट डिकम्पोजिशन में we consider the simple case of the relation R being decomposed into R1 and R2. ठीक, हम एक सिंपल केस ले रहे हैं डिकम्पोजिशन का जिसमें एक रिलेशन R है जो डिकम्पोज हो रहा है R1 एंड R2 में. ठीक, इफ द डिकम्पोजिशन इज लॉसलेस, अगर डिकम्पोजिशन लॉसलेस है देन वन ऑफ द फॉलोइंग टू कंडीशंस मस्ट होल्ड. अगर डिकम्पोजिशन लॉसलेस है तो इन दोनों में से एक कंडीशन जरूर होल्ड होगा. क्या क्या? या तो R1 इंटरसेक्शन R2 टेंड्स टू R1 माइनस R2 मींस R1 माइनस R2 इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन R1 इंटरसेक्शन R2. ठीक, या तो फिर R1 इंटरसेक्शन R2 टेंड्स टू R2 माइनस R1, दैट इज R2 minus R1 is functionally dependent on R1 intersection R2. ठीक, so what is lossless joint decomposition? If the natural joints of the decompositions give exactly the same table or exactly the same relation, then this is called lossless joint decomposition. When we decompose a table into more than one table, then we have seen that some information or loss or some extra tuples have been obtained. This is called lossless joint decomposition in which we have loss of information. तो लॉसलेस ज्वाइंट डिकम्पोजिशन के बारे में एक बार फिर से बोला जाए, अगर when we decompose a table into more than one table, then after performing the natural join or when we join the decomposition, then we find that there is some loss of information or we get some extra tuples that are not in the original relation. This is called lossless joint decomposition. This is called lossy decomposition. The natural join of decompositions of a relation gives exactly the same relation is called lossless joint decomposition. If we consider the simple case of lossless joint decomposition in which
a relation R is decomposed into two relations R1 and R2, then lossless joint decomposition must hold any one of the following two relations, that is R1 minus R2 is functionally dependent on R1 intersection R2, or R2 minus R1 is functionally dependent on R1 minus R1 intersection R2. दिस ठीक है। तो ये लॉसलेस ज्वाइंट डिकम्पोजिशन के लिए कंडीशन है। अब इस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए ये लिखा हुआ है इसका स्टेटमेंट, दैट इज द कॉमन एट्रीब्यूट इन R1 एंड R2 मस्ट इंक्लूड अ कैंडिडेट की, that is the common attribute in R1 and R2 common attribute in R1 and R2 must include a candidate key must include a candidate key of either R1 or R2 of either R1 or R2। ठीक, तो ये आपका लॉसलेस ज्वाइंट डिकम्पोजिशन का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन था। अब देखिए इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कंसीडर द स्कीम, क्वेश्चन है इसको दो पार्ट में हम डिवाइड कर दे रहे हैं। कंसीडर द स्कीम S equals to VWXYZ, S equals to VWXYZ with Z tends to V, W tends to Y, and XY tends to Z, comma V tends to WX। क्वेश्चन फर्स्ट, whether S1 equals to VWX, comma S2 equals to UVZ is lossless ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक, अब देखिए सबसे पहले क्या है, रिलेशन R, ये रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है, और ये फंक्शनल डिपेंडेंसी दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, ये रिलेशन दिया हुआ है और ये फंक्शनल डिपेंडेंसी दिया हुआ है। अब पहले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो डिकम्पोजिशन किया गया है S1 एंड S2 का, जो डिकम्पोजिशन किया गया है S1 एंड S2 का, क्या वो लॉसलेस है?
क्या वो लॉसलेस है? तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करें कैसे। सबसे पहले हम S1 इंटरसेक्शन S2 निकाल लें। S1 इंटरसेक्शन S2, S1 intersection S2 equals to S1 intersection S2 is V and V tends to WX given, ठीक। तो क्या था R1 माइनस R2, अगर इन दोनों का हम माइनस निकालते हैं R1 माइनस R2 का, तो WX है ना। तो यहां दिया क्या है, यहां दिया क्या गया है, R1 इंटरसेक्शन R2 टेंस टू R1 माइनस R2 और R1 इंटरसेक्शन R2 टेंस टू R2 माइनस R1, ठीक। अब अगर हम S1 माइनस S2 करते हैं, S1 माइनस S2 इक्वल्स टू, दैट इज इन S1 बट नॉट इन S2, V नहीं होगा, W होगा और X होगा, WX ये होगा, WX ये होगा, ठीक है। तो अब पहला वाला रिलेशन, सिंस S1 इंटरसेक्शन S2 टेंस टू S1 माइनस S2, दैट इज S1 intersection S2 is V tends to WX. Therefore, S1 and S2 are lossless joint decomposition. S1 and S2 are lossless joint decomposition. भाई या तो R1 इंटरसेक्शन R2 टेंस टू R1 माइनस R2 आए, या तो R1 इंटरसेक्शन R2 टेंस टू R2 माइनस R1 आए। तो पहले वाले कंडीशन में ये फुलफिल बैठ रहा है, पहले वाले कंडीशन में फुलफिल बैठ रहा है, दूसरे को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगर ये फुलफिल बैठ रहा है V टेंस टू WX और यहाँ V टेंस टू WX दिया भी है, तो इसीलिए S1 एंड S2 क्या हो जाएंगे, लॉसलेस ज्वाइंट डिकम्पोजिशन, ठीक। तो ये क्वेश्चन एक था। फिर एक क्वेश्चन और देखा जाए इसी रिलेशन के करस्पॉन्डिंग। इसी रिलेशन के करस्पॉन्डिंग एक और क्वेश्चन देखा जाए। is S1 equals to VWX and S2 equals to XYZ is lossless। ये क्वेश्चन है, ठीक। तो फिर से वही भाई, फिर से हम वही प्रोसेस अप्लाई करें। तो S1 इंटरसेक्शन S2 इक्वल्स टू VWX X आया, ठीक। अब S1 माइनस S2 इक्वल्स टू
VWX X S1 minus S2 S1 minus S2 VW, ठीक है। एंड अब यही निकाल देते हैं S2 माइनस S1 भी, S2 माइनस S1 इक्वल्स टू S2 माइनस S1 XYZ, ठीक। अब ये देखेंगे कि क्या S1 इंटरसेक्शन S2 टेंड्स टू S1 माइनस S2 और S2 माइनस S1 है, ठीक। मतलब क्या है कि ये फंक्शनल डिपेंडेंसी ऐसा दिया हुआ हो, x टेंड्स टू या तो VW दिया हो और x टेंड्स टू YZ दिया हो। x टेंड्स टू यहां दिया ही नहीं है, यहां ये दिया ही नहीं है, सिंस देयर इज नो सच टाइप ऑफ functional dependency given in the original relation, therefore S1 and S2 are lossy decomposition, lossy joint डिकम्पोजिशन, ठीक। ये हो गया आपका, ये हो गया है ना भाई। जब हम निकाल रहे हैं तो ये आ रहा है, इसमें से कोई ऐसी डिपेंडेंसी यहां दी ही नहीं हुई है, कोई ऐसी डिपेंडेंसी दी हुई नहीं है, तो इसीलिए वो क्या हो जाएगा, लॉसी ज्वाइंट डिकम्पोजिशन, दैट इज लॉसी ज्वाइंट डिकम्पोजिशन। अब एक क्वेश्चन और देखा जाए। We are talking about lossless joint decomposition, हम बात कर रहे हैं lossless joint decomposition की, ठीक। एक क्वेश्चन और, consider the relational schema S equals to BW XYZ with FDs Z tends to V, comma W tends to Y, V tends to WX, is the decomposition of S into S1 and S2 is lossless. Is the decomposition of S into S1 and S2 is lossless, and decompositions are S1 equals to VWX, S1 equals to VWX
S2 इक्वल्स टू वी वाई जेड, S2 इक्वल्स टू वी वाई जेड, ये है। ठीक है, अब हमें ये पता करना है कि क्या ये लॉसलेस है या नहीं है। तो फिर से वही तरीका हम अपनाएंगे। सबसे पहले हम क्या निकालें, S1 इंटरसेक्शन S2, S1 इंटरसेक्शन S2 इक्वल्स टू VWX S1 इंटरसेक्शन S2 इक्वल्स टू VWX VYZ। तो VWX है और VYZ है, तो S1 इंटरसेक्शन S2 दोनों में कॉमन क्या आएगा, V आएगा, V आएगा। ठीक, अब S1 माइनस S2 इक्वल्स टू S1 माइनस S2 VWX VYZ, WX आएगा, हाँ WX आएगा। ठीक, फिर निकाल लें S2 माइनस S1 इक्वल्स टू S2 माइनस S1 VYZ VWX YZ आएगा, YZ आएगा। ठीक, अब क्या है, फॉर डिकम्पोजिशन फॉर लॉसलेस ज्वाइंट डिकम्पोजिशन क्या है, R1 माइनस R2 टेंड्स टू, नहीं सॉरी, R1 इंटरसेक्शन R2 टेंड्स टू R1 माइनस R2 और R1 इंटरसेक्शन R2 टेंड्स टू R2 माइनस R1, ये होना चाहिए। ठीक, तो R1 इंटरसेक्शन R2 V टेंड्स टू WX, V टेंड्स टू WX, V टेंड्स टू WX obtained using 1, इसको 1 कर दीजिए और इसको 2 कर दीजिए। ठीक है, obtained using 1। ठीक, and V tends to WX is also given in functional dependencies। ठीक है, therefore क्या हो गया, the decomposition in S1 and S2 is lossless joint decomposition, therefore the decomposition of S into S1 and S2 is lossless joint decomposition। ठीक है, बस कुछ नहीं किया गया है, सिंपल सा, एकदम सिंपल सा तरीका अपनाया गया है। भाई ये रिलेशन दिया हुआ है, कंसीडर द रिलेशनल स्कीमा, ये रिलेशन दिया हुआ है S इक्वल्स टू VWXYZ with functional dependency Z tends to V, W tends to Y and V tends to WX is the decomposition of S into S1 and S2 is lossless where decompositions are S1 equals to VWX and S2 equals to VYZ। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक, सोल्यूशन इसका कुछ नहीं, बस हम इन दोनों का S1 और क्यों हम निकाल रहे हैं इंटरसेक्शन, क्योंकि हमें इन दोनों में से एक चीज फाइंड करना है। अगर इन दोनों में से एक मिल गया तब तो वो लॉसलेस होगा, अदरवाइज वो लॉसलेस नहीं होगा। ठीक, तो S1 इंटरसेक्शन S2, S1 इंटरसेक्शन S2 इक्वल्स टू, हम इन दोनों में इंटरसेक्शन फाइंड कर रहे हैं, मतलब दोनों में कॉमन, दैट इज V। ठीक, फिर S1 माइनस S2 इक्वल्स टू, हम फाइंड कर रहे हैं इन दोनों में S1 माइनस S2, दैट इज इन S1 बट नॉट इन S2, तो V हो गया WX, ये आ गया। S2 माइनस S1 मतलब कि जो S2 में हो S1 में नहीं हो,
तो YZ आ गया, ठीक। फॉर लॉसलेस जॉइंट डिकम्पोजिशन या तो ये रिलेशन फॉलो हो R1 इंटरसेक्शन R2 टेंड्स टू R1 माइनस R2, और या तो दूसरा वाला रिलेशन फॉलो हो R1 इंटरसेक्शन R2 टेंड्स टू R2 माइनस R1, ठीक। तो V टेंड्स टू WX अगर हम पहले वाले को बना रहे हैं, पहले वाले को लेके बना रहे हैं, तो V टेंड्स टू WX ऑब्टेन्ड यूजिंग 1 एंड V टेंड्स टू WX यहां दिया भी है, is also given as functional dependencies, ठीक। Therefore the decomposition of S into S1 and S2, the decomposition of S into S1 and S2 is lossless joint decomposition, ठीक। तो ये था कंप्लीट आपका लॉसलेस जॉइंट डिकम्पोजिशन। अब इसके बाद मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसीज है, बट आज के वीडियो को यही खत्म किया जाता है। आज के वीडियो में बस इतना ही, आगे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।